Hello, people on YouTube channel who is watching us. And today we have with us Mayank Jaiswal and Rachna Pandey. Or first of all, I would like to welcome both of you to our session and many congratulations to both of you for cracking the Byju's interview. जो भी आपका journey रही है throughout after आपके college से लेके selection तक. Okay, so we'll have few questions regarding that. Okay, so we'll have first of all we'll have quick intro about both of you and then we'll start. So we'll start with Rachna. So Rachna, start. Okay, so hi sir, my name is Rachna. I am from Kanpur, and I did my bachelor's in journalism from Kanpur, and then I pursued a master's in digital journalism from Bhopal. So after pursuing and after completing my master's, I realized that there is no job in my sector which will gonna pay me enough. So I started scrolling YouTube and started searching about like good jobs which will can pay good amount, good salary. Then I'll come to know about Byju's. Now when I search about Byju's and Byju's interview, lot of video came into my search box. So after scrolling and after watching lot of videos, I came to Vikas Sir's channel, and then there is facility like you can join their Telegram group. So after joining that Telegram group, you can interact with sir and other fellows. So Vikas sir booked my mock session with Vaibhav sir. Okay. And believe me, I didn't know that this interview and this accidentally search will gonna help me this much. So yeah, they booked my interview. My interview was on like a 1 week prior with my actual from my actual interview. I give that like this mock interview, and they asked me like a scenario based questions. They asked like real questions, so that they can know that how can I answer and what is like my thinking thinking is. So after completing that interview, when I finally gave my actual interview, I found that all the questions Vaibhav sir asked is like this interviewer is asking same questions. So I am prepared enough. So Vaibhav sir and Vikas sir's this practice helped me a lot to crack this Byju's so-called Byju's tag interview, which is based in three round interview, telephonic round and video round. So no doubt this is a tough interview, but with the help of Vaibhav sir and Vikas sir, I cracked, and now I'm working in Byju's, and it is a good experience in working in India's leading edtech company, world's leading edtech company, I guess. So yes. We'll come back to you. Once we'll start with Mayank also. So Mayank, can you just add your experience and your intro part as well? So viewers will know basically that what you have done and how you have achieved your journey. Yes. So my name is Mayank Jaiswal. I am doing my BBA. I have done graduation BBA from Chitkara University, and I come to know about this company, about this job profile from my campus only. This was a campus placement, and I appeared from that, and then I gave my resume to my college teachers, campus placement shell. Then I started searching videos on YouTube how to crack the interview of a Byju's. Then I see some 2-3 videos on first, which comes on the first, but scrolling down on third, fourth, I saw a video that it is a mock interview of Byju's. Okay. So I started watching that, and I was getting a good knowledge, and I was thinking that this type of question will be asked in the interview. And after that, I opened the channel of Vikas sir, and almost seen all the videos of the interview and the feedback sessions that has a separate part of video, and I got a good amount of knowledge, and after that I make a list of questions, main questions. After that I think that I should also give a mock test.
Okay. It is not so much costly. If I will get selected, this will be not. This will not affect me a lot. Paying a 200 rupees or 500 rupees. So I talked to sir on Telegram, and they booked my session on same day only, and it was quite good. I have collected a good amount of knowledge and information that how which type of questions has been asked in the interview, Okay. and feedback session was very useful. And this is the best part of both, that you are giving a feedback. By that we come to know that where we are weak and where we have to perform well and gain knowledge. So that was the Okay. best part. I focused on my weak points and work on it. I have approximately 1 week in between, so I Okay. worked on my lacking skills and perform well in the interview. ओके ओके सो रचना आई वांट टू नो फ्रॉम यू दैट आप मुझे बताइए कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस थे जो मॉक इंटरव्यू में पूछे गए आपसे और जिन्होंने आपको हेल्प किया जब आपने इंटरव्यू दिया फाइनल बायजूस का. सो कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे या क्या पैटर्न था क्वेश्चन का जिसने आपको हेल्प किया? ओके सो सर बेसिकली जो भी क्वेश्चंस बायजूस में वीडियो राउंड में पूछे जाते हैं वो सिनेरियो बेस्ड पूछते हैं. पहले तो वो आपका इंटरव्यू लेंगे, मतलब इंट्रोडक्शन लेंगे, उसमें वो सिनेरियो Okay. बेस्ड क्वेश्चन बाद में पूछते हैं. तो Okay. विकास सर और वैभव सर ने जिस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के लिए तैयार करवाया था, मतलब कि अब अगर मैं उसको बताऊं कि क्या क्वेश्चन थे, तो टेलीफोनिक पहला राउंड में क्वेश्चन आपसे ये क्या था. क्या पूछा गया था? टेलीफोनिक राउंड में क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे आपसे? टेलीफोनिक राउंड में मेरा इंट्रोडक्शन दिया गया था कि आप क्यों बायजूस में आना चाहते हो और आप अपनी फील्ड, मतलब जो मीडिया फील्ड रही है मेरी, वो छोड़ के अब आप सेल्स में आओगे, कैसे सरवाइव करोगे. 10 to 12 वाली जॉब नहीं है, बहुत हेक्टिक है, और ग्लास डोर पे ऑलरेडी मैंने रिव्यूज पढ़े थे, तो उन्होंने भी ऐसा बोला कि बहुत हेक्टिक है, बहुत प्रेशर है, आप कैसे मैनेज करोगे. तो टेलीफोनिक अच्छा गया मेरा. उसके बाद उन्होंने मुझे वीडियो राउंड में सेलेक्ट किया. हाँ, तो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में जो भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे वो आप व्यूअर्स के साथ डिस्कस कर सकते हो आप? या तो फर्स्ट वीडियो राउंड उन्होंने पूछा कि एक बाल्ड मैन है, अब उसको आपको कंघी बेचनी है. Okay. ठीक है, तो अब आपको उसको कन्विंस करना है कि ये कंघी आप ले लो, पर उसके पास बाल नहीं है. ठीक है, रचना आई थिंक ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था मॉक इंटरव्यू में, राइट? मॉक में ये क्वेश्चन था, राइट? यस यस, यही क्वेश्चन तो था. अगर आपने ये प्रिपेयर नहीं कराया होता तो मुझे तो मैं सोच नहीं सकती थी कि एक बाल्ड मैन को कैसे कंघी बेचेंगे. एग्जैक्टली, करेक्ट. एग्जैक्टली, तो सेम क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा. सेकंड क्वेश्चन ये था कि एक बंदा है, वो लद्दाख में रहता है. ठीक है, अब उसको आपको एसी बेचनी है. ओके. ठीक है, आपने जो क्वेश्चन पूछा था वो भी सेम था. आपने कहा था कि जम्मू कश्मीर में बंदा है, उसको आपको एसी. यस यस यस, ठीक है, करेक्ट तो करेक्ट. हाँ, तो अब ये वाला आंसर भी मुझे प्रिपेयर था कि अच्छा इसमें क्या क्या काउंटर हम दे सकते हैं, कैसे हम बात कर सकते हैं. तो उसके लिए भी मैंने 2 से 3 मिनट सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को उनको आंसर किया, और उनको कॉन्फिडेंट आ गया था कि मैं कर लूंगी, और मुझे प्रिपेयर है ये आंसर्स. और आपने ये भी बोला था कि एकेडमिक क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए थे, तो 2-3 क्वेश्चन आप बता सकते हैं व्यूअर्स को? हाँ, नहीं, वो मेरे फाइनल राउंड पे था एकेडमिक क्वेश्चन. मैं तैयार थी सिनेरियो बेस्ड के लिए. ठीक है, उन्होंने मुझसे 2-3 सिनेरियो बेस्ड पूछे, फिर लास्ट में उन्होंने कहा कि दिस इज योर लाइक लास्ट क्वेश्चन, टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशियो एंड फ्रैक्शन. ओके. अब मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ा था, मतलब उसके बाद मैंने पढ़ा था, पर उस टाइम तक मुझे नहीं पता था उसका आंसर कि उसमें डिफरेंस क्या है, रेशियो वो. तो फिर ये एकेडमिक क्वेश्चन था. सेकंड उनका क्वेश्चन ये था फंसाने के लिए मुझे कि आपने मीडिया में काम किया है, तो आप मीडिया के जॉब्स क्यों नहीं देख रहे हो. ठीक है, आपको वहीं पे जाना चाहिए. अगर आप मीडिया फील्ड के लिए, अगर आप क्या बोलते हैं उसको, मतलब इंटरेस्टेड हो मीडिया फील्ड में. एग्जैक्टली, अगर आपने उसमें इतना टाइम दिया है, पैसा दिया है, डिग्री ली है, अब आप उसकी तरफ झुकाव नहीं है. अब आप सेल्स में आ रहे हो, फिर आपको सेल्स नहीं सूट करेगी, फिर आप कहीं और चले जाओगे, तो हम आप पे कैसे ट्रस्ट कर ले. सो ये क्वेश्चन ऐसा था कि इसमें मुझे खुद भी डाउट होने लगा था कि हाँ सही बोल रहे हैं क्या. पर फिर मैंने उसको टैकल किया, जैसा कि मुझे वैभव सर ने कहा था कि इंटरव्यू में आपको एकदम घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंटली जवाब देने हैं, और जो इंटरव्यूअर है वो यही देख रहा है कि आप कितने काउंटर कर सकते हो, कितना कॉन्फिडेंट हो आप अपने आंसर के लिए.
मयंक, आई थिंक आपके पास ये क्वेश्चन आया था ना कि डिफरेंस बिटवीन रेशियो एंड फ्रैक्शन। यस सर, यस सर, हाँ, आपने मेरा ही ये पूछा क्वेश्चन था। था बेसिकली। Yes, मॉक sir, में हम मैं लोगों वही ने कह पूछा रहा था। यस। था। Yes, sir. सो मयंक, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप में चेंजेस क्या आए हैं, मतलब आप पहले कैसे थे बिफोर द इंटरव्यू, बिफोर द मॉक इंटरव्यू, और बाद में आपने क्या इंप्रूव किया अपने आप में, आप में क्या चेंजेस वगैरह आए हैं, तो आपका आंसर क्या होगा इस पे? आपका क्या कॉल है इस पे? सर मेन तो ये था ना कि अगर हम इंटरव्यू से मतलब हमने कुछ प्रिपरेशन नहीं करी एंड बाई चांस आपको इंटरव्यू, आपको नहीं पता किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, सिनेरियो बेस्ड या कुछ भी। अगर जैसे अभी रचना ने बोला कि अभी उसको कॉम बेचनी थी, सो इट करेक्ट। वाज एट ए टाइम बंदे को कोई भी आंसर नहीं आता माइंड में, किसी भी पर्सन को करेक्ट। वो एकदम से सोच नहीं करते कि क्या क्या पॉइंट्स बोलूं, और इंटरव्यूअर हमेशा क्रॉस क्वेश्चन करता है। अगर आप पॉइंट बोलोगे करेक्ट। तो आपको कहेगा क्यों नहीं, आप अगर आप बोलोगे कि आप बाय कर लो, आप अपने किसी क्लोज वन को गिफ्ट कर सकते हो, तो बोलेगा मेरे को गिफ्ट करने के लिए नहीं चाहिए, मुझे अपने लिए चाहिए। तो उस टाइम आपके पास करेक्ट। कोई ऑप्शन नहीं रहता उसने। अगर आप पहले प्रिपेयर कर लोगे मॉक टेस्ट देके या फिर जो वीडियोस देख के, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड अगर आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि जब आप नेक्स्ट टाइम जो फाइनल राउंड जो और दोगे बायजूस में, उसमें आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मुझे पता है इसमें से मोस्टली जो आप पूछते हो वही क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं, बट जब एक पर्सन को इतनी नॉलेज हो जाती है तो वो उस टाइप के क्वेश्चन भी पॉप अप कर लेता है इजी। मयंक, मैं आपसे एक सवाल पूछना है मुझे कि फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू और फाइनल ऑफ इंटरव्यू में क्या डिफरेंस है? आपको कैसा लगा, ये दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? तो फर्स्ट राउंड तो मेरा बहुत ही बेसिक था, बहुत सिंपल था। जस्ट एक कॉल आई थी मुझे एंड उन्होंने पूछा था कि आपने बायजूस में अप्लाई किया है। आफ्टर दैट उन्होंने इंट्रो ली थी सिंपल सी, एंड देन कहा था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आप आज 4 to 6 फ्री हो। तो उसके बाद उन्होंने लिंक मेल कर दिया था। फर्स्ट राउंड कोई इतना ज्यादा वो नहीं था, सिर्फ इंट्रो पूछते हैं एंड कि वाई कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, दैट्स ऑल। और जो लास्ट राउंड था वो थोड़ा सा टफ होता है। उसमें जो इंटरव्यूअर होता है आपको बार बार डिमोरलाइज करने की कोशिश करता है, बार बार आपके वो टेस्ट करना चाहता है कि आप किस एक एंड पे जाके अपने आप को वीक कर लेते हो कि नहीं अब मेरे से नहीं हो पाएगा। वो चीज आपने इंटरव्यू में कभी शो नहीं करनी। जो भी इंटरव्यू दे रहा है बेसिकली गिव अप नहीं करना है, आप ये बोल रहे हो? सॉरी सर, आपने बेसिकली ये बोला कि गिव अप नहीं करना है। गिव अप नहीं करना, कॉन्फिडेंट रहना है इंटरव्यू के टाइम। कभी भी बीच में अगर आप थोड़े से भी उनको लग गया कि इसका कॉन्फिडेंस लूज हो गया है एंड आंसर अगले क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे वो प्रॉपर्ली आंसर नहीं कर पा रहा, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो आप हमेशा अपने आप में माइंडसेट लेके चलो कि जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हो हमेशा कॉन्फिडेंट रहो, चाहे आपको आंसर नहीं भी आता, कुछ थोड़ा सा ट्राई कर दो। अगर फिर भी नहीं होता तो घबराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसके आंसर को आप अच्छे से नहीं कर पाओ। कितने तो ये सिनारियो चीज बेस्ड जरूर क्वेश्चन ध्यान पूछे गए थे आपसे फाइनल राउंड में? सिनेरियो बेस्ड आई थिंक 2-3। कितने कौन कौन क्वेश्चन थे? एक दो क्वेश्चन आप शेयर कर सकते हो? हाँ जी सर। सर एक तो मेन यही था कि मतलब मैं पंजाब में रहता हूँ। सर ने कहा था इंटरव्यू सर ने कि मैं पंजाब में रहता हूँ एंड आपने मेरे को कोर्स सेल करना है, मेरा बच्चा 4th क्लास में है। पहले उन्होंने मेरे से पूछा था कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना चाहोगे, K3, K10 एंड K12। जिनको नहीं पता, K3 प्लेटफॉर्म जो है वो स्मॉल स्टूडेंट्स के लिए है, 1st to 4th। K10 इज फॉर 10th, सॉरी 4 to 10th, एंड K12 इज फॉर 11th 12th एंड जो जेई मेंस एंड बाकी एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव। तो मैंने उसमें से K10 चूज किया था। तो उन्होंने जान के, अगर मैं K12 चूज करता तो थोड़ा सा कंपटीशन होना था, बिकॉज 11th 12th के बच्चे जो होते हैं उन्हें काफी नॉलेज होती है और वो ऐसी चीज ढूंढते हैं जहाँ से अच्छी एक्सप्लोर करते हैं कि जो हम पैसे लगा रहे हैं उससे अच्छी नॉलेज मिले। सो मैंने K10 चूज किया कि थोड़ी सी इजी होगी सेल। बट उसमें भी इंटरव्यू ने क्या ट्रिक यूज करी, उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा 4th क्लास में, सबसे छोटी क्लास में। एंड अगर हम कन्विंस करेंगे, इंटरव्यू हमेशा बार बार ये कह रहे थे कि मैं 4th क्लास के बच्चे पे इतने पैसे क्यों लगाऊं, आपके कोर्स वैसे ही इतने महंगे होते हैं, 40,000 50,000 के होते हैं, मैं इतने छोटे बच्चे पे ये इन्वेस्टमेंट क्यों करूं। तो मतलब मैंने उन्हें जस्टिफिकेशन दी थी कि सर ये एक टाइप की इन्वेस्टमेंट है आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए। अगर आप अभी से उस पे इन्वेस्ट करोगे, जो उसके छोटे छोटे कंसेप्ट हैं वो डेवलप होंगे, आगे जाके जो फ्यूचर में क्लास +1 +2 में उसको ईजी रहेगा जो उसके सिलेबस है उसको कवर करने के लिए। बिकॉज जब बेस डेवलप हो जाएगा बच्चे का तो आगे जाके उसे कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप ये कोर्स जब यूज करते रहोगे तो यूज टू हो जाओगे।
देन वो एंड में मतलब ऐसा कहेंगे कि आपको 1 साल बाद चलो ऐसे करते हैं, मैं थोड़ा टाइम सोच लेता हूँ, ये सेशन तो निकल गया तो नेक्स्ट सेशन से शुरू कर लूंगा। कई होंगे उस टाइम ठीक है ओके डन, तो बट हमें उस टाइम गिव अप नहीं करना, हमें कहना है कि सर कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर मैं किसी और को कोर्स भेज दूंगा, ना आपको प्रॉब्लम होगी ना मेरे को, आपका सफर करेगा जो है वो स्टूडेंट, आपका बच्चा सफर करेगा, बिकॉज आपको जो उसको नॉलेज अभी मिलेगी, जो हम अभी प्रोवाइड करेंगे, वो 1 साल बाद मिलेगी, तो 1 साल बच्चा आपका पीछे हो जाएगा। देन काफी मतलब डिस्कशन क्रॉस क्वेश्चन होते रहे, तो एट द एंड उन्होंने कहा था कि मैं कल आपसे कांटेक्ट करूंगा, तो मैंने उसमें गिव अप कर दिया था कि ओके ठीक है, बट सर ने मेरे को लास्ट में कहा था कि आप ट्राई करो कि उसी दिन डील को क्लोज कर दो, बिकॉज नेक्स्ट डे आप कस्टमर के घर नहीं जा सकते। एग्जैक्टली। रचना, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो काफी लो था जब हमने मॉक इंटरव्यू दिया था, सो क्या ड्रास्टिक चेंज आया आपके कॉन्फिडेंस में आफ्टर मॉक इंटरव्यू? क्या कॉन्फिडेंस लेवल में चेंजेस वगैरह आए, या क्या बिल्डअप हुआ आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस? क्या था आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जब सर मैंने आपको जब मॉक इंटरव्यू दिया था फर्स्ट टाइम, तो कॉन्फिडेंस इसलिए कम था क्योंकि एक तो फर्स्ट टाइम मैंने बायजूस के लिए अप्लाई किया, ऑलरेडी मैंने Correct. बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे रिव्यूज पढ़ लिए थे कि कितना टफ होता है, क्या क्वेश्चंस होते हैं, तो पहले तो ऑलरेडी चला गया था कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैं खुद भी मैं बहुत घबराई हुई थी। आफ्टर दिस मॉक इंटरव्यू, क्योंकि अब मुझे पता चल गया था कि कैसे क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाने हैं और क्या क्या एक इंटरव्यूअर मुझ में देखने वाला है, कि मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा नेवर गिव अप एटीट्यूड। तो अब मुझे पता चल गया था कि अब मुझे खुद को कैसे प्रेजेंट करना है, तो उसके कॉन्फिडेंस लेवल पहले 10 था, तो अब जो रियल इंटरव्यू के टाइम मैं 100 नहीं बोलूंगी पर 80% हो गया था। माय गॉड, 80% तक का इंक्रीमेंट था मतलब कॉन्फिडेंस में। Exactly. एक मॉक इंटरव्यू ने इतना इंक्रीमेंट किया आपके कॉन्फिडेंस लेवल में। Exactly. एंड देन आपने एक बार में क्रैक कर लिया, विद इन वेरी फर्स्ट गो आपने क्रैक कर लिया। यस सर, दैट इज वेरी गुड एक्चुअली, एक्सीलेंट। ओके, सो रचना, आप क्या बोलेंगे? जो हमारे व्यूअर्स हैं, काफी लोग सोचते हैं कि मॉक इंटरव्यूज वगैरह मतलब उतने हेल्पफुल नहीं होते हैं, डायरेक्टली इंटरव्यू देना हमारे लिए ज्यादा यूजफुल है, हम क्यों टाइम वेस्ट करें मॉक वगैरह में? उससे बेटर है कि वील प्रिपेयर, खुद से प्रिपेयर करेंगे और सीधा हम इंटरव्यू देंगे बायजूस का। तो क्या एडवाइस है आपका उनके लिए कि मॉक देना इंपॉर्टेंट है या नहीं है? क्या आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर? मेरे हिसाब से अगर फर्स्ट गो में आपको एकदम क्लियर करना है बायजूस का इंटरव्यू, तो मॉक इंटरव्यू लाइक मस्ट, क्योंकि उसके पहले तक आपने सिर्फ वीडियोस देखे, हो सकता है आपने एक दो नोट्स बनाए हो, पर आपने असल में सामने कोई बैठा है इंटरव्यू और वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये एनवायरमेंट आपने फील नहीं किया होगा। सो मॉक इंटरव्यू तो मस्ट है अगर आपको निकालना है बायजूस का इंटरव्यू। Okay. एंड सेकंड Ma'am, what's your call? Yes sir. We'll come back to you. Sir. We'll come back to you. Yes, ma'am, what's your call? आप क्या बोलते? It's like the best thing is कि जब भी मॉक इंटरव्यू आप लेते हो तो उसमें स्टार्टिंग में बोल देते हो that consider it that it is your final interview, ये नहीं सोचना कि it's a mock test। तो एक तरह से हमें अगर हम सोचें तो हमें एक तरह से एक और चांस मिल जाता है, अगर हमारी कोई गलती है तो हमें फर्स्ट राउंड में पता लग जाता है, ताकि हम सेकंड राउंड में इम्प्रूव कर पाए उसको और वो इंटरव्यू अच्छे से क्लियर हो जाए। करेक्ट। रचना, जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं मॉक इंटरव्यूज में, वो कितने रिलेटेड होते हैं फाइनल इंटरव्यू से? मतलब क्या कंसिस्टेंसी रहती है कि जो इंटरव्यू में हम पूछते हैं मॉक में, वो सेम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं फाइनल इंटरव्यू में? क्या इसकी कंसिस्टेंसी क्या रहती है आपके हिसाब से? सर मेरे केस में तो 80% वही क्वेश्चन थे जो आपने पूछे। जैसे आप जो क्वेश्चन पूछते हो वो सिनेरियो बेस्ड होते हैं और उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन पूछते हैं। हो सकता है प्लेस का नाम चेंज कर दे, हो सकता है कि अपना नाम चेंज कर दे, बट सिनेरियो वही रहता है कि आपको ये चीज है, इनको बेचनी है। ओके, सो बेसिकली आपको एक सेकंड चांस मिल जाता है कि आपने खुद से एक बार प्रिपेयर कर लिया है, उसके लिए आंसर्स दे दिया है, अब देन यू नो कि आप कहां लैग कर रहे हो, एंड यू हैव गॉट द फीडबैक आल्सो फॉर दैट। एग्जैक्टली, तो आप फीडबैक से आपको ये एक अच्छा मिल गया कि आप उसमें जहां पे आप लैग कर रहे हो आप उस पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। एग्जैक्टली, जब तक आपका रियल इंटरव्यू हो। एग्जैक्टली। मयंक, व्हाट अबाउट यू? कितने क्वेश्चन रिलेटेड थे आपके केस में? सर मोस्टली लगभग सारे ही थे, बट एक दो मैं कहूँगा बीच में से थोड़े अलग थे, बट वो ऐसा नहीं था कि बहुत बिल्कुल ही आउट ऑफ द कंटेंट हो जाएंगे, उससे रिलेटेड ही थे, इजीली आंसरेबल थे,
एंड बीच में जैसे एक दो बार उन्होंने डिमोरलाइज करने की मेरे को काफी कोशिश की थी, लाइक एकेडमिक्स में मेरे से उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे, तो उसमें भी मेरे से आंसर नहीं किए गए थे एक दो क्वेश्चंस। तो उन्होंने मेरे को जस्ट बोला था कि आई डोंट थिंक यू आर सुटेबल फॉर दिस जॉब बिकॉज आपके पास इतनी जो जनरल नॉलेज है वो नहीं भी नहीं है है, अवेलेबल आपके स्किल्स पास। नहीं है सेम आपके विथ पास। तो मी, उसको सेम विथ मी। तो उन्होंने एक तरह से डिमोरलाइज किया था। अगर मैं उस टाइम पे उनको बोल देता कि ठीक है सर, या एक दो बार ट्राई करता, एंड सर बार बार रिपीट कर रहे थे कि सॉरी अब हम आपको हायर नहीं कर सकते, आप किसी और कंपनी में ट्राई कर लो, तो मैं उनको बार बार कन्विंस कर रहा था कि सर एक चांस देके देखो, आपको पक्का जब आप मुझे सिलेक्ट करोगे आपको सेल्स डेफिनेटली मिलेगी, आप किसी भी तरीके से रिग्रेट नहीं करोगे कि मैंने इसको सिलेक्ट क्यों करा। आपने गिव अप नहीं किया, इसका मतलब है ना। यस सर, अगर मैं एक दो बार उनको कन्विंस करके अगर वो नहीं मानते एंड मैं कहता चलो ठीक है सर सॉरी आई विल ट्राई इन सम अदर कंपनी और आई विल ट्राई आफ्टर 90 डेज, तो डेफिनेटली मेरे को उन्होंने सिलेक्ट नहीं करना था, क्योंकि उन्होंने देख लेना था कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। करेक्ट करेक्ट। रचना, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा आपसे कि जो टेलीग्राम चैनल है हमारा और जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसने कितना हेल्प किया? आउट ऑफ 10 रेटिंग क्या देंगी आप यूट्यूब चैनल को और टेलीग्राम चैनल को, कि उन्होंने क्या रोल प्ले किया आपकी पूरी जर्नी में? सर आउट ऑफ 10 थोड़ा सा बायस हो जाएगा, पर मैं 10 दूंगी, क्योंकि मैं अगर अभी बायजूस में काम कर रही हूँ तो उस मॉक इंटरव्यू की वजह से ही कर रही हूँ, क्योंकि नहीं तो शायद नहीं हो पाता। फर्स्ट गो में लोग बोलते हैं बायजूस का इंटरव्यू क्रैक करना पड़ता, थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको कुछ आइडिया नहीं होता कैसे क्वेश्चन होने वाले हैं, क्या वो सामने से काउंटर कर देंगे। सो मेरे केस में तो मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगी टेलीग्राम चैनल को भी और आपके यूट्यूब चैनल को भी। क्यों? और सर एक चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ, अभी मैं बायजूस में सिलेक्ट हो गई हूँ, पर अभी भी कुछ भी दिक्कत आती है मैं सीधे विकास सर को पिन कर देती हूँ कि सर मुझे इधर दिक्कत आ रही है तो प्लीज थोड़ा सा गाइड करो, या तो बहुत ज्यादा मुझे मदद मिल रही है आप दोनों से और दो चैनल से। व्हाट अबाउट यू मयंक, आपसे अगर मैं पूछूं कि क्या रेटिंग्स होगी आपकी तरफ से, तो आप क्या बोलोगे? सर बहुत हेल्प किया, 10 में से 10 ही देना चाहूंगा, बट और पता नहीं कहीं और लोग सोचे ना कि ये पेड रिव्यूज है, सो डोंट थिंक अबाउट दैट। जो आपको वीडियोस YouTube पे है ना, वो सबसे ज्यादा हेल्प करेगी कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, सिनेरियोस क्या पूछ रहे हैं। और जो टेलीग्राम के जो आपके उसमें ग्रुप है, उसमें आप सबसे अच्छी चीज ये नोटिस करोगे कि दोनों सर हमेशा आंसर करते हैं, चाहे कुछ देर बात करें, चाहे मैसेज सीन करके छोड़ दे, बट बाद में वो रिप्लाई करेंगे उसका डेफिनेटली। और जब आप उसमें एक टेलीग्राम से ये आपको हेल्प हो जाती है कि मॉक इंटरव्यू दे सकते हो और आप में कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, तो आई थिंक कि बहुत अच्छा ये जो आप चला रहे हो, इट्स वेरी गुड। ओके ओके कूल। सो रचना, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि कौन से वैसे वीडियोस थे यूट्यूब चैनल पे जिनको आपने मैक्सिमम टाइम फॉलो किया, जो आपने मैक्सिमम देखे, जिससे आपने मैक्सिमम हेल्प ली? अगर आपको कुछ नाम याद हो उस वीडियो के या कुछ भी आपको टाइटल वगैरह याद हो, किससे आपने मैक्सिमम हेल्प ली? सो सर आपके चैनल में एक वीडियो है 30 क्वेश्चंस। ओके, टॉप 30 टॉप 30 क्वेश्चंस। तो मतलब वो तो या तो वो ऐसा है कि वो बाइबल है, जो जिसने वो क्वेश्चन अपने सही से तैयार कर लिए वो गुड टू गो है। तो वो मैं सर मेरा जो इंटरव्यू था वो एक हफ्ते बाद था, जब मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया था और मॉक इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया था। वो एक हफ्ता मैं हर सुबह और हर शाम को मैं वही वीडियो देखती थी, क्योंकि उसमें ना पहले आप क्वेश्चन बताते थे, फिर क्या उसका आंसर होना चाहिए, फिर वो आंसर क्यों होना चाहिए, क्रॉस क्वेश्चनिंग। करेक्ट, या एग्जैक्टली। तो वो पूरा मतलब या तो एक पूरा आइडिया मिल जाता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या इंटरव्यूअर आपके माइंडसेट में देखेगा कि आपको कैसे आंसर करना चाहिए। सो वो वाला वीडियो बहुत हेल्पफुल था मेरे केस में। ओके, व्हाट अबाउट यू मयंक, कौन सा वीडियो आपको हेल्प कर रहा था पूरी जर्नी में? सर सेम, जो 30 क्वेश्चंस थे ना वो वाली वीडियो, उसमें क्या है, द मेन थिंग इज कि आपको मेमोराइज नहीं करना, क्रैम नहीं करने क्वेश्चंस, कि मैंने ये क्वेश्चन का आंसर नोट डाउन कर लिया, अब मैं ये याद कर लूंगा एंड यही बोलूंगा। आपको जस्ट एक तरह से क्वेश्चंस की लिस्ट मिल जाती है, प्रिपेयर कर सकते हो कि इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, एंड आप पॉइंट्स को माइंड में रख सकते हो कि ये पॉइंट्स मैं ऐड कर सकता हूँ इसमें। आप अगर क्रैम करके जाओगे तो वो इतना अच्छा साउंड नहीं करेगा इंटरव्यू के टाइम। तो ये मैं हमेशा बोलता भी हूँ, ये चीज मैं हमेशा बोलता भी हूँ, मैं बोलता हूँ कि आप आंसर्स को याद मत करो, फ्रेम इट योर वे,
मैं आपको बताता हूँ कि उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, बट बेस्ट ऑप्शन इज फ्रेम इट योर वे, टू नॉट कॉपी माई वे। मैं क्या बोलता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, टू नॉट कॉपी दैट, क्योंकि सबकी अपनी मेंटालिटी होती है, सबके अपने आंसर फ्रेमिंग के तरीके होते हैं। तो फ्रेम इट योर वे, मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ। हाँ एंड सर इंटरव्यू भी जो है ना, वो इंटरव्यू लेते हैं कितने, एक दिन में कितने पर्सन्स के इंटरव्यू ले लेते हैं, वो भी बहुत स्मार्ट होते हैं, उन्हें पता है यूट्यूब पे वीडियोस हैं इस पे, एंड इस टाइप के करेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप पूरे राइट कॉपीड राइट बोलोगे ना, वो डेफिनेटली वो आपको बोलेंगे कि आप ये वीडियोस, ये आपने कहीं से वीडियो देख के या कॉपीड है आपका कंटेंट, ये ओरिजिनल नहीं है, अगर आप क्रैम करोगे। करेक्ट सो ये है कि आप उससे आइडियाज लो, जो फीडबैक वीडियोस हैं चैनल पे, उनपे, उनसे भी आप आइडिया ले सकते हो कि शायद आप भी इस पार्ट में वीक हो और इम्प्रूव कर सकते हो। मैंने अर्चना जी की भी, इनकी भी वीडियो देखी थी, इनकी भी चैनल पे आई है लास्ट में, कल इन्हीं की वीडियो ये है, लेटेस्ट वीडियो तो है। वो भी मैंने देखी। हाँ जी, करेक्ट वो भी करेक्ट देखी है मैंने। करेक्ट। ओके, सो रचना, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है और नेक्स्ट सर कि मैं एक बहुत चीज, लोग ऐसे होते हैं। हाँ जी या रचना कुछ बोलिए बोलना बोलिए। चाह रही है। हाँ जी प्लीज। नहीं नहीं, मैं बस ये बोल रही थी कि जो आपने वीडियोस लिस्ट बोली थी, तो आपके चैनल में सर कुछ वीडियोस ऐसे जिसमें आपने मतलब बाकी लोगों के इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू लिए हैं, तो उसमें बहुत ही छोटी छोटी सी चीजें, मतलब एक एक कोई थी वो अपनी इंट्रोडक्शन दे रही थी, तो उसमें उन्होंने करेक्ट अपना पूरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया, बाद में उन्होंने मेंशन कर दिया था कि उनके कितने परसेंटेज आए हैं, तो आपने वो करेक्ट फौरन बोल दिया कि बाद में फीडबैक में कि परसेंटेज नहीं मेंशन करते हैं। तो ये सब बहुत एग्जैक्टली। छोटी छोटी सी चीजें, पर ये बाद में जब एक्चुअल में बहुत बड़ी बन जाती है। सो ओके या सो ये भी मुझे हेल्प आया कि क्या क्या चीज बोलनी है, बहुत ही फिल्टर चीजें बोलनी है। ओके। रचना, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है नेक्स्ट कि बहुत लोग ना गिव अप कर देते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि यार मॉक इंटरव्यू तो दे लिया, या मॉक देने की जरूरत नहीं है, बायजूस बहुत टफ है, पहले ही सोच लेते हैं मन में, मतलब ख्याल बना लेते हैं अपने मन में कि यार इट्स वेरी टफ, मुझसे नहीं होने वाला है, दिट्स नॉट माई कप ऑफ टी, मेरे से तो होना ही नहीं है। सो आप बताओ रचना कि जिस बैकग्राउंड से आप आए थे, जो कॉन्फिडेंस आपका था, तो आप उन्हें क्या बोलना चाहोगे कि क्या ये उनके लिए नामुमकिन है, क्या ये मुश्किल है, क्या क्या आप क्या राय है आपकी, क्या सजेशन रहेंगे आपको उनके? सर मुझे भी पहले यही लगा था कि बहुत मुश्किल है और नहीं हो पाएगा, इनफैक्ट मैं विकास सर को बोलती भी थी कि सर मुझसे नहीं हो पाएगा, और मतलब वो क्वालिटीज ही नहीं है मुझ में। जो लोग करेक्ट असल में क्रैक करते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, उनकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होती है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। पर अगेन मॉक इंटरव्यू ने मुझे बहुत पूरा प्रिपेयर कर दिया था इंटरव्यू के लिए। सो जिन लोगों को लगता है कि बायजूस का इंटरव्यू टफ है, तो उनको एक बार मॉक इंटरव्यू देना चाहिए, क्योंकि फिर वो उनके लिए, मैं ये नहीं बोलूंगी कि एकदम इजी हो जाएगा, पर उनको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आंसर करना है और क्या क्या चीजें वो अप्लाई करके, छोटी छोटी चीजें अप्लाई करके वो क्रैक कर सकते हैं बायजूस का एक्चुअल इंटरव्यू। करेक्ट। मयंक, व्हाट अबाउट यू? आप क्या बोलोगे वैसे लोगों को जो लोग मना कर रहे हैं कि यार बहुत टफ है मेरे लिए, नहीं हो सकता है मेरे से? यस सर। सर द मेन थिंग इज कि हार नहीं माननी कभी भी अपनी लाइफ में। इंटरव्यू तो एक छोटी सी चीज है, पूरी लाइफ पड़ी आगे। अगर आप इतनी छोटी छोटी चीजों में हार मानना स्टार्ट कर दोगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो मेन थिंग है करेक्ट आपको अपने में कॉन्फिडेंस रखना है कि नहीं मैं कर सकता हूँ। एंड अगर करेक्ट आप मतलब आपने अंदर अपने अंदर ठान लिया है कि मैं करूंगा, इंटरव्यू क्रैक करना है, तो आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं है वो जो नहीं रोक सकती। मैं भी पहले सोचता था कि ये सिर्फ बातों में होता है, असलियत में नहीं एप्लीकेबल लाइफ में, बट ये सच्ची में एप्लीकेबल हुआ है लाइफ में। एंड सर ने भी काफी अच्छे टिप्स शेयर किए हैं, जैसे कि आप अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड कर सकते हो। करेक्ट स्टार्टिंग में जब मैंने भी यही सोचा था कि शायद ट्राई कर लेता हूँ, पक्का नहीं पता मेरे को क्लियर होगा इंटरव्यू या नहीं, मैंने कहा एक ट्राई देके देख लेते हैं इंटरव्यू के लिए बायजूस में। बिकॉज इससे करेक्ट पहले मैंने एक दो इंटरव्यू दिए थे बजाज फिंसर्व हेल्थ का, और वो बेसिक इंटरव्यू था, इतना कोई ज्यादा हाई नहीं है लेवल का नहीं था जैसे बायजूस का हुआ है। उसमें आई गॉट रिजेक्टेड ओके approximately 6 to 7 weeks months before, बट ओके उससे मैंने हार नहीं मानी। पहले स्टार्टिंग में मेरे को बहुत फील हुआ कि ऐसा क्यों हुआ, मैं से क्यों नहीं हुआ हो पाया क्लियर, बट उसके बाद मैंने अपने स्किल्स पे काम करना शुरू किया, अपनी इंग्लिश को थोड़ा सा इम्प्रूव करना शुरू किया, कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करी, जो कि हेल्प करी मुझे आगे जाके। एंड जब सर ने भी मेरे को बोला था, वैभव सर ने मेरे को बोला था कि आप क्या करो, मिरर है आपके घर में, मिरर के सामने जाके जो करेक्ट क्वेश्चंस आपको पता है वो आप बोलो,
उसके आंसर्स करो। Correct. सो मिरर Correct. के सामने मेरे से एक्चुअली इतने अच्छे से नहीं हो पाया था। सो मैंने क्या किया, अपने लैपटॉप का कैमरा ऑन किया एंड जो पीडीएफ थी क्वेश्चंस की, वो एक साइड पे पीडीएफ खोली एंड एक साइड पे कैमरा ऑन है। सो क्वेश्चंस पढ़ के मैं अपने आप आंसर दे रहा हूँ। दिन में मैंने 2 to 3 टाइम्स किया है एक वीक में। तो इससे मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस मिला। एंड सेकंड ये था कि एक मैंने अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए मैंने भी अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था, जिससे मुझे थोड़ा सा मतलब पता लगा कि किसी के सामने कैसे इंटरेक्ट करना है, अपनी बात कैसे रखनी है किसी के सामने। तो मेरा भी यूट्यूब पे चैनल है कार्स के बारे में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, एमजे कार गैराज के नाम से। तो वो भी अच्छा चल रहा है। चैनल का नाम आप मेंशन कर सकते हो व्यूअर्स को। ओके सर, एमजे कार गैराज के नाम से मेरा चैनल है। उसमें मैं कार के रिव्यूज करता हूँ एंड कोई मॉडिफिकेशंस हो वो बताता हूँ। अगर कोई पार्ट रिप्लेस कैसे करना है, मतलब जो कार्स की है वो फुल इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको कि कहाँ से सर्विस में भी पैसे कैसे बचा सकते हो। तो काफी इंफॉर्मेटिव कंटेंट है उसमें भी, आप जाके एक बार विजिट कर सकते हो। ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। गाइस, मयंक ने जो ये टिप बताई ना, वो एक काफी हेल्पफुल टिप थी। मैंने मयंक को बोला था एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू कि आप ये चीज करो। जिसको कॉन्फिडेंस नहीं आता है बोलने में, जिसको लग रहा है कि नहीं बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, जो भी हमें देख रहे हैं इस वक्त, डू दिस। अगर आपको लगता है कॉन्फिडेंस की कमी है ना, तो कैमरे के सामने या आईने के सामने लाइक प्रिपेयर योरसेल्फ, अपना इंट्रोडक्शन दो, वहां पे कुछ बोलना शुरू करो वहां पे, ताकि यू गेट अ कॉन्फिडेंस हाउ टू स्पीक। तो डेफिनेटली आप ये चीज करो। इफ एनीवन इज हैविंग इशू, डेफिनेटली आप ये चीज करो, है ना। मयंक, हमारा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि फॉर्म भरने का तरीका क्या है, अगर मॉक इंटरव्यू में आना है मुझे तो प्रोसेस क्या है इसका, कैसे आना है। तो आप मुझे बता पाएंगे हमारे व्यूअर्स को कि क्या तरीका है मॉक इंटरव्यू में आने का, रजिस्टर कैसे करना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर है इसका। यस सर, स्टार्टिंग में तो मैं इसके बारे में बिल्कुल भी फैमिलियर नहीं था, बिकॉज मैंने कैंपस से अप्लाई किया था। बट आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम के ग्रुप का, उसको ज्वाइन करो। उसमें आप क्वेश्चंस कर दो, सर दोनों सर, विवेक सर एंड वैभव सर आपको आंसर कर देंगे। उसमें एक गूगल फॉर्म होगा, वो आपको भेज देंगे, उसको फिल करो। आपको सेम डे या नेक्स्ट डे कॉल जरूर आ जाएगी बायजूस से। ओके सो फाइनली अब गाइज हम रैप अप कर रहे हैं इस सेशन को। बट रैप अप करने से पहले मैं फाइनल रिव्यू चाहूंगा आप दोनों से, लाइक 30 सेकंड्स रिव्यू चाहूंगा मैं आप दोनों से कि आप क्या बोलेंगे फाइनली अपने हमारे व्यूअर्स को कि कितना हेल्पफुल था ये मॉक। और फाइनली रैप अप करने के लिए मैं बोलूँ आपको, तो हाउ विल यू रैप अप इन 30 सेकंड्स। सो वी विल स्टार्ट विद मयंक फर्स्ट एंड देन वी विल गो विद रचना। ओके सर, सो सर मेन थिंग, अगर वही मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, आप इंटरव्यू एक बार मॉक टेस्ट दो, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको पता लगेगा किस चीज में आप लैग कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आपने इंटरव्यू नहीं दिया एंड आपको नहीं पता आप किस पार्ट में लैग कर रहे हो, आपने फाइनल इंटरव्यू दे दिया, उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, आप उनसे बाद में रीजन पूछ लो क्या रीजन था, वो आपको रीजन बता देंगे। उस टाइम आप रिग्रेट करोगे कि मुझे 90 डेज बाद अप्लाई करना पड़ रहा है इस कंपनी में। ठीक है, अगर आप यही चीज पहले 200 रुपीज या 500 रुपीज लगा के बाय कर लोगे, एक इंटरव्यू दे लोगे, आपको उसमें फीडबैक भी दे देंगे, जो पॉइंट्स होंगे उस पर वर्क करो। आपके पास टाइम है 1 वीक का या 4 to 5 डेज, उस पर वर्क करो अच्छे से और इंटरव्यू क्लियर करो। करेक्ट। रचना, योर कॉल। सर सेम चीज मैं बोलूंगी जो मयंक ने बोला कि एक बार मॉक इंटरव्यू देने से आपको बहुत आइडिया पड़ जाएगा कि कहाँ पे आपको कैसे बोलना है। सीधे अगर आप एक्चुअल इंटरव्यू में जाओगे तो वहां पे आप कुछ गलती करोगे तो आप सीधे रिजेक्ट हो जाओगे। 90 दिन के 90 डेज के लिए आप फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर आपको वापस से अप्लाई करना पड़ेगा। सो 90 डेज बचाने के लिए अगर आप 200-500 रुपए खर्च करके एक मॉक इंटरव्यू दे सकते हो, जिससे आपको प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा कि बायजूस का कैसे इंटरव्यू होगा, आगे का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, या कितने राउंड में इंटरव्यू होता है, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, तो पूरा आइडिया आपको मिल जाएगा। दिस इज लाइक केक वॉक, दिस इज लाइक केक वॉक। करेक्ट। सो गाइज, मैं आपको बताना चाहता हूं कि फाइनली ये थे हमारे मयंक जायसवाल एंड रचना पांडे। इन दोनों ने फर्स्ट इंटरव्यू में, फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना इंटरव्यू क्रैक किया। दे वर नॉट नोइंग एनीथिंग कि बायजूस क्या है, क्वेश्चंस कैसे होते हैं, क्या होते हैं, बट दे शोड देयर कॉन्फिडेंस। उन्होंने मॉक इंटरव्यूज दिए एंड दे वर्क ऑन देयर वीकनेसेस, जो भी वीक पॉइंट्स उन्होंने वर्क करा वहां पे, और दे क्रैक्ड इट इन फर्स्ट गो। दैट इज अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि बायजूस के जो इंटरव्यूज होते हैं क्रैक करने थोड़ी मुश्किल होते हैं, but they did in first go. So my best wishes are with Mayank and Rachna. Do very well in your future. I have full faith on you both that you will do very well in Byju's. So I wish all the best for you. And जो viewers है
कुछ क्वेश्चंस वगैरह अगर आपके होते हैं तो डू राइट अस ऑन कमेंट सेक्शन एंड डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स. थैंक यू सो मच टू रचना पांडे एंड मयंक जायसवाल Thank you. कि हमारे चैनल का आपने Thank रिव्यू you दिया. Thank you. Thank you so Thank you much, so sir. much Thank you too. so much for Thanks, giving guys. this